So these three economic activities, business, profession and employment, are very very important, and we should know the exact differences between them. The differences, as I told you, you have to write the basis of difference first, then you have to write what is the difference between them. Like number one, नेचर ऑफ वर्क. तीनों में नेचर ऑफ वर्क क्या है, अलग अलग है. एक बिजनेसमैन के मेन काम क्या होगा? बिजनेसमैन विल सेल और परचेज गुड्स और सर्विसेज, और ही विल मैन्युफैक्चर goods and then sell them. Whereas a professional will provide service and charge fees for that. Whereas an employee will work and get remuneration in return. तो ये तो हो गया नेचर ऑफ वर्क. इसके बदले में उन्हें क्या क्या मिलता है, उनके रिवॉर्ड क्या है उनके लिए. व्हाट इज द रिवॉर्ड? नाउ किरत, व्हाट विल बी द रिवॉर्ड फॉर अ बिजनेसमैन? प्राची, पायल. Sir, the reward for the businessman will be profit. Reward for the businessman. Businessman जो कुछ भी कर रहा है, all the business activities which he is performing, he is doing it for profit sake. A professional will get fees for it, for his service, whereas an employee under employment will get salary, remuneration. Salary or remuneration, we call it remuneration also. REMUNERATION, remuneration. बात करते हैं रिस्क की. रिस्क in business, there is a lot of risk in business. In business there is a lot of risk because उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पैसे लगाने पड़ते हैं, सामान खरीदना, स्टोर करना पड़ता है, मार्केट कंडीशंस का आपको कुछ पता नहीं होता. अचानक देखिए, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक all the shops are closed, market gets closed early, businessmen are affected a lot. Whereas profession में there is less risk. In a profession there is lesser risk than business, and in employment there is no risk as such. कंपैरिजन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम रिस्क है, बिकॉज द एम्प्लॉय हैज टू गो एंड प्रोवाइड हिज सर्विसेज. वहां नहीं तो वो कहीं और भी कर सकता है. बट businessman cannot shift his business. Professionals also cannot shift their business very soon, means their office and all very soon. Number next is transfer of interest. Transfer of interest, क्या आप अपना काम किसी और से करवा सकते हैं? In business it is possible. Interest can be transferred to somebody else. Profession it is not possible. प्रोफेशन इट इज नॉट पॉसिबल. अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर नहीं है तो कोई और आपका इलाज थोड़ी कर सकता है, ओनली ही कैन डू इट. सेम वे इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी जगह ये काम करेगा 4 दिन और मैं जो है 4 दिन बाद आऊंगा, आई एम गोइंग फॉर अ लीव. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. यू मे बी वेरी स्किल्ड पर्सन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, सो योर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड. Then there is code of conduct. In business there is no code of conduct. Code of conduct means rules, regulations, ethics and all, moral ethics. Whereas in profession there are code of conducts. Code of conduct profession में होते हैं, कुछ rules है, regulations है, कुछ laws है, कुछ legal formalities है जो पूरी करनी पड़ती है, जरूरी है. And in employment also there are lot of code of conduct. जब आप कहीं पर जॉब करते हैं तो वहां के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? देयर इज ए टाइम. बिजनेसमैन किसी भी टाइम जाके अपनी शॉप खोल सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन एम्प्लॉय
or a professional to do it, because it will affect them adversely. It will affect them adversely. Qualification. Qualification के बारे में कह रहे हैं, बिजनेस में there is no qualification required. Anybody can do business. Anybody. As such, there is no qualification required for doing any type of business. But for professionals, qualification is required, degree is required. डॉक्टर को MBBS डिग्री चाहिए, राइट? आपका BBA होना चाहिए, MBA होना चाहिए फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, CA होना चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए. इन सब की डिग्री होती है, इन सब के क्वालिफिकेशन होती है. देन ओनली दे कैन बी ट्रीटेड एज प्रोफेशनल्स. बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है. एनीबडी कैन स्टार्ट बिजनेस, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो. Whereas employment also, आपको आपके पास वो पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. वो पर्टिकुलर ट्रेड, वो पर्टिकुलर स्किल आपके पास होना चाहिए फॉर विच यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब. जॉब में जो भी रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल बी आस्क्ड ऑफ यू टू प्रेजेंट बिफोर इंटरव्यू एंड ऑल. एनी अदर पॉइंट एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? Main objective of business is money making, profit. Main objective of professionals is to get the fees, to provide professional service and get fees. And the main objective of doing employment is to get the regular income. Give your service to the employer and get the remuneration or the salary. और कोई पॉइंट आपको पूछना है जो समझ में नहीं आया हो? Then the next topic is, what do you mean by concept of business? What is business? As I told you yesterday, business means being busy. Being busy in economic activity is business. If somebody is engaged in any of the economic activity, he is busy in doing some or the other activity, means he is in business. और जब भी बिजनेस हो रहा है, it means क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और परचेज हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नंबर 1, मार्केटिंग ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंसिंग and management of human resources. Management of human resources, 3 M's. 3M. Men, money and material. Human resource, this is human resource, this is finance, and this one is all the resources which are going to be utilized for your business. मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो चाहे वो किसी और काम के लिए हो. Characteristics of business or features of business. What are those essential qualities or essential elements which are must in business, without which business is not possible? Number 1, business as an economic activity. Business is treated as an economic activity. ये तो आपका most important point हो गया, that business, anything which is not done with an intention of earning money is not business. It is then something else. It is service, it is charity, but it is not business. Business means economic activity, which is related to economic activity. Number 2, in business, there is either production, manufacturing, purchase or sale of goods and services. Trade, जिसे हम कह रहे थे कल, trade. Business means production,
purchase, manufacturing, sale of goods and services, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज हैं ऑफ बिजनेस. देन नंबर 4, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. रेगुलर बेसिस पे काम होना चाहिए. मीन्स टू से, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने अपनी एक साइकिल बेची, तो वो कोई बिजनेस थोड़ी हो गया. आपने जो है किसी को जो है, आप बहुत अच्छा एक क्रिकेट बैट लेके आए थे, आपने वो क्रिकेट बैट जो है किसी को बेच दिया, चाहे उसमें आपने प्रॉफिट भी कमा लिया, बट इट विल नॉट बी अ बिजनेस एक्टिविटी because you are not doing it on regular basis. आपका काम नहीं है ये क्रिकेट बैट बेचना. नोटबुक कहीं से खरीद के लाए थे and that notebook is sold to somebody because he needed it that time, so that will not be called business. Business activity are those activity which are done on regular basis. हर रोज, दिन में कई बार, every day you are doing it, then it will be a business activity. Then there should be a profit motive, as I told you yesterday also, and I am being revising it again and again, repeating it again and again, that business activities are must with a profit motive. Profit motive उसमें होना बहुत जरूरी है. No business activity can be treated as economic unless it is with a profit motive. Profit motive हटा दीजिए, the business activity becomes a charity. It becomes a normal routine activity which has nothing to do with the money. Then there is uncertainty of return. Uncertainty of return, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बिजनेस में बहुत सारा रिस्क है. Just now I told you that business profession and employment में सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है? बिजनेस में. That is uncertainty of return. Uncertainty of return. आपने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसमें कितना वापस आएगा, कितने परसेंट आपको प्रॉफिट होगा, इट इज नॉट सर्टेन. क्योंकि आपको पता है बिजनेस इज अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स. बिजनेस इज अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स. सो मेनी फैक्टर्स मींस आपके मार्केट में क्या कंडीशन है, कंपटीशन कितना है, कस्टमर्स का टेस्ट और प्रीफरेंस क्या है, बार बार चेंज होता रहता है, आपको पता है. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कम ज्यादा होता रहता है. अदर कंडीशंस विच आर नॉट इन योर हैंड, जैसे कि ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट इट विल बी अप टू 2 o'clock, मार्केट विल बी अप टू 2 o'clock, आपके हाथ में नहीं है, आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है. व्हाई? बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो we have to see that all the business activities जितनी भी है उसमें ये जो uncertainty of risk का फैक्टर है, ये हमें ज्यादा इफेक्ट ना करे. We should keep ourselves in such a situation or condition. We should keep ourselves well prepared. Therefore, our business should be adaptable. It should be dynamic. Dynamism should be there in our business. Our business should be such that we should be able to cope up with the changing environment. Then only the uncertainty of return will not affect us much. The last one is element of risk. That is always an element of risk in business. Element of risk matlab there are so many risks. Risk of loss by fire, loss by theft, chori, loss by accident,
right? Loss by decrease in demand. There are different type of risk. आपके बिजनेस में जो लोग काम करते हैं लोग, वो आपके साथ जो है किसी तरह का फ्रॉड कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं. So all these are business risks about which we will also study further. ये सारे मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बिजनेस. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम. एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? एनी पॉइंट जो अभी तक हमने पढ़ा है, यू कैन आस्क. Sir, Yes. please explain the characteristics of business. Which point? Characteristics. Sir, explain करें सारे points. sir, manufacturing. हैं? Sir, manufacturing point. Manufacturing. Manufacturing is very simple. Manufacturing means business. अगर कोई एक्टिविटी हो रही है बिजनेस में, if any of the activities going on in business, वो क्या हो सकती है? वो होगी या आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते होंगे, प्रोड्यूस करते होंगे, और आप जो है सेल और परचेज करते होंगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और आप करते होंगे क्या? सामान बनाते होंगे और उसे बेचते होंगे. यही तो काम होता होगा, और कोई काम नहीं है बिजनेस में. दूसरा, जो भी प्रोडक्शन आप करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल लाते होंगे, या फिर आपके पास खुद ही वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता होगा, या तो फिर आप कहीं और से लेके आते होंगे, और इट मस्ट बी अवेलेबल इन योर विसिनिटी ओनली. आपकी ही जगह में कहीं पर वो रॉ मटेरियल होता होगा, उसी से आप फिर उसे प्रोड्यूस करते हैं. एक होता है कि आप रेडीमेड सामान कहीं से लेके आते हैं और उसे बेचते हैं, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. देयर आर 3 बेसिकली, बट हम यहां पर आपके 2 मेन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बी वेरी क्लियर दैट इनमें मेन जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, तो आप समझ रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू मनी. मैक्सिमम जो है आपका बिजनेस का जो मेन मोटिव है, जो मेन मोटिव ऑफ बिजनेस है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. The main motive of any business is profit maximization. प्रॉफिट अपना बढ़ाना, पैसा कमाना. तो उसमें जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे मनी से रिलेटेड है. नंबर 1 इज प्रॉफिट अर्निंग. प्रॉफिट अर्निंग में आप ये देखेंगे कि प्रॉफिट आपके बिजनेस का कैसे बढ़े. प्रॉफिट इज द, आप कह सकते हैं प्रॉफिट एक तरह का पैरामीटर है, एक मीटर है, जिससे कि आप ये नापते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है. अगर आपका बिजनेस हर साल प्रॉफिट बढ़ाता जा रहा है अपना, इट मींस यू कैन से वेरी इजीली by comparing the profit of current year with the previous year that your business is running smoothly. और आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पहले बार से ज्यादा आप कमा रहे हैं, और it is a good sign. It is a yardstick to measure the efficiency of business. Efficiency of business. अगर बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है, सभी लोग उसमें अपना पूरा 100% दे रहे हैं, everything is going on well, then only you can earn profit. So profit earning is a yardstick to measure the efficiency of business. Number 2 is market standing. मार्केट में आप कहां स्टैंड करते हैं?
आपकी पोजीशन कौन सी है मार्केट में, आप हमेशा सबसे टॉप पे रहना चाहेंगे। तो आपके कंपटीटर्स के मुकाबले मार्केट में आपका कितना शेयर है, कितने परसेंट मार्केट पे आपका कब्जा है। इस समय जैसे आपका वीवो, ओप्पो, ऑल दिस टाइप ऑफ फोन्स जो इनका मार्केट में शेयर बढ़ता जा रहा है। पहले जो हमारे होते थे नोकिया, सैमसंग, उनका कम होते जा रहा है। व्हाई? बिकॉज दीज आर गिविंग फीचर्स which the other phone companies are not giving. These are giving those features which are very costly in other phones. That's why market standing is also very important. जितने ज्यादा मार्केट पे आपका स्टैंडिंग होगी, जितने ज्यादा मार्केट में आपका कब्जा होगा, उतना ज्यादा आपका जो है प्रॉफिट शेयर होगा। इनोवेशन इज येट अनदर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप अपने प्रोडक्ट में कोई नई क्रिएटिविटी के साथ कोई नया फीचर ऐड करते हैं तो आपकी सेल्स बढ़ जाती है। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स विल इंक्रीज। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स विल इंक्रीज तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। प्रियदर्शनी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. All those whom I can see, Ansul Mittal, Isha Peter, Sarthak, keep your cameras on, beta. Arpita Khurana, now she has kept the camera on. Keep your cameras on so that I can also ask sometimes different topics which are going on. Otherwise, I do not know whether you are there or not. It is a sign of a good student. Then there is Slokraj, Gurbaj, Supreet. Those who are not there on the screen. Prerna, Siddhi, Khushi, Kushrawal. So, Arpita Khurana, when innovation is there, क्या बेनिफिट मिल सकता है फर्म को? इनोवेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी। तो आपने देखा होगा वो मोबाइल कंपनी जो अपने मोबाइल फोन में नए नए फीचर जल्दी जल्दी लॉन्च करती है, उसकी सेल्स जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ती है। पीपल लाइक इट, एवरीबडी वांट्स टू परचेज द मोबाइल बिकॉज उसमें जो है अच्छे फीचर है। जो एसीज आते हैं न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, नए नए फीचर्स के साथ कंपनी एसीज लॉन्च करती है। क्यों करती है? सो दैट फीचर इज लाइक्ड बाय द पीपल एंड ऑल विल बी परचेजिंग इट, देयर सेल्स विल इंक्रीज। तो इस तरह के जो वो है आपका फीचर्स, वो इनोवेशन से आते हैं। न्यू फीचर्स कम विद इनोवेशन। इनोवेशन अगर आपका होगा तो फिर जो है आपको अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प मिलेगी। आपको। देन नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी ऑफ योर प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी एज पर द डिमांड एंड मोर देन दैट। ठीक है नहीं? आपको देखना होगा कि आपका प्रोडक्शन जो है गुड्स का रेगुलर बेसिस पे होता रहे, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप बनाते रहे और कभी भी उसकी जो है कमी ना हो। द लास्ट वन इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड फॉर द सेल ऑफ गुड, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सब आपके पास पूरे होने चाहिए। फाइनेंशियली ऑल्सो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू cover your all expenses, to go for new assets and all। सारे आपके पास रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 M's, मैन, मटेरियल एंड मनी। all the resources should be properly arranged। then there are social objective, last topic for today। then there are social objective। social objective का मतलब कि बिजनेस को सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज बिजनेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस भी सोसाइटी में ही है, सोसाइटी से ही चलता है।
people come, the customers are also part of society. जो रिसोर्सेज वो यूज करता है, जो लोग उसके यहाँ काम करते हैं, they also form society. तो सोसाइटी के लिए बिजनेस को क्या करना चाहिए? नंबर 1, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज. सप्लाई ऑफ डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सोसाइटी, जो भी कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज मांग रहा है, उसकी सप्लाई करनी चाहिए प्रॉपरली. एंड द सप्लाई ऑफ डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी रेगुलर होनी चाहिए. फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. फेयर, किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं, किसी भी तरह का कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं, किसी भी तरह की कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, किसी भी तरह की काला बाजारी जिसे कहते हैं आप, होल्डिंग, जमा करना. जैसे कि अगर मान लीजिए अभी ये पेंडेमिक हो रहा है, लोगों को लगे कि कई दिन तक बाजार बंद रह सकता है, तो कई दुकानदार जो है बहुत सारा सामान स्टॉक कर लेते हैं और उसकी कमी कर देते हैं मार्केट में, एंड आफ्टरवर्ड्स दे जस्ट रेज द प्राइसेस अननेसेसरली एंड ट्राई टू बेनिफिट by looting customers, taking advantage of the situation and conditions. तो ये जो unfair trade practices है, एक अच्छे बिजनेसमैन को जो है शोभा नहीं देती, and these should not be practiced. These are against the business ethics, morals. Then जो भी सामान बिजनेसमैन प्रोवाइड करा रहे हैं, that should be in reasonable prices. रीजनेबल प्राइस होना चाहिए उनका, neither too much nor too less. बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं कि आप मार्केट में कंपटीशन के चक्कर में जो है अपना प्राइस बहुत कम कर रहे हैं, आपको भी नुकसान होगा, दूसरे मार्केटर्स को भी उसमें जो है नुकसान होगा. Then there is employment opportunities. Business should provide employment opportunities to others. आपकी दुकान में भी तो कुछ ना कुछ लोग काम करेंगे, so it is a good social सर्विस. वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं आप उनका ध्यान रखेंगे. ये भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा काम है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उनका सोसाइटी के लिए, दैट दे शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज. रेगुलरली उनको सैलरी वगैरह देनी चाहिए, फीस वगैरह देनी, पेमेंट वगैरह करनी चाहिए, वेजेस देनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन उनके लिए अच्छी रखनी चाहिए, ऑल दैट. एंड लास्ट में सोशल वेलफेयर के भी कुछ काम करते रहने चाहिए. सोशल वेलफेयर के भी कुछ काम करने चाहिए. सोशल वेलफेयर के काम क्या होते हैं? जैसे कभी कोई लंगर वगैरह कर दिया, कहीं पर कोई जो है बच्चों के लिए आपने वो लगा दिया, ट्रेड फेयर लगा दिया, आपने जो है कोई फेट ऑर्गेनाइज कर दिया है, आपने ऑर्फनेज वगैरह में जाके कुछ चैरिटी करी है. So all these work can be done by the business as a social objective. That is all for today. I hope the topics which are explained to you, you must have got something of it, and revise those topics. Start writing in your notebooks. Don't wait कि कब जब स्कूल खुलेगा, रिजल्ट आएगा, तब हम काम करना शुरू करेंगे. That will be too late for you. You are already in class 11th, okay, and you have already decided for a stream. It is very good that you have decided early. Stick to it. Make notes as per the headings जो explain कर रहे हैं हम. किसी भी उसमें 6 heading से आप ज्यादा ना लिखें. 6 headings are must in each question, each concept. अगर ज्यादा है तो भी आप कोई 6 लिखिए जो आपको सबसे अच्छी और आसान लगती है. Try to make notes by yourself. Don't copy. अकाउंट्स में भी अभी जो है आपका ऐसे ही चलेगा. इन द बिगनिंग अकाउंट्स में भी अभी आपका जो है थियोटिकल है, नो प्रॉब्लम. आफ्टर 1 week when business will start, then I will give you. Yes, somebody is saying something. Sir, one doubt is there. Who is this? Sir, गुरबाज सिंह. तो गुरबाज सिंह जी कैमरा ऑन करिए अपना. सर बिना लाइनिंग की सर कौन से सब्जेक्ट की कॉपी बनानी है? क्या बोला आपने? सर बिना लाइनिंग की जो आप कल कॉपी बता रहे थे वो कौन से सब्जेक्ट की बनानी है? बिना लाइनिंग के नहीं, उसमें सिर्फ वो नहीं होना चाहिए कॉलम, जो सबसे पहला कॉलम होता है. एक बार फिर से दिखाऊं आपको. यस सर.
सर दिखा दो सर। ऐसा रजिस्टर मैंने कहा बनाने के लिए, अकाउंट्स के लिए, ये जो मोटा रजिस्टर आता है, बस इसमें ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक लाइन होती है ना, कॉलम, एक कॉलम होता है यहां पर कोने में हर पेज यस सर। ऐसे, वो वाली लाइन नहीं होनी चाहिए, बाकी ऐसे होना चाहिए। ये सब लाइनें ऐसी होंगी उसमें, दिख रहा है ना? हाँ बस। यस सर। आपकी बिजनेस वगैरह में आप बना सकते हैं, बिजनेस की भी ऐसे बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ऐसा रजिस्टर मोटा सा, और साफ साफ उसमें काम करें, जैसे जैसे आपका काम होता है, गेट दैट चेक्ड, एंड प्लीज कीप योर कैमराज ऑन, try to be in the school dress. If you are not there in the school dress, then at least keep the camera on so that I know who is there. I don't know many of you by faces, by name. Slowly I will come to know you, you will come to know me, and we will together study better, and I will be able to help you in a better way. Come back tomorrow again, sorry, on Monday. Thank you. Take care of yourself, and God bless all of you. Thank you.